Welcome dear student. Today we will learn about the stack and queues. This is the third unit which we are going to study and the topic is introduction to stack. Now stack क्या है ये आपको पता है. Stack एक linear data structure है जो हमने stack के introduction में पढ़ा था data structure के chapter में. That is stack is a linear data structure which stores the element in like a CD box and it performs the operation on the principle of last in first out. So after watching this video, you will be able to learn the basic concept of stack. Stack क्या है, understand the stack working principle, उसका काम करने का तरीका किस तरीके से है और stack को किस तरीके से represent करते हैं memory में, that you will study. POs मतलब प्रोग्राम आउटकम इससे कौन से मैप हो रहे, दैट इज PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 एंड PO10. तो हमारा जो PO1 है दैट इज बेसिक नॉलेज, PO2 इज द डिसिप्लिन नॉलेज, PO3 दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, PO4 दैट इज इंजीनियरिंग टूल, PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, PO9 is your communication and PO10 is a lifelong learning. So we start with the introduction of stack. What is stack? So stack is a linear data structure. A linear data structure क्यों बोल रहे हैं? Because it stores data in a sequential form, that is in the one after another. A stack is a data structure in which items can be inserted only from one end and get items back from the same end and it is called as top end. Stack में जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ये stack में एलिमेंट एक ही एंड से इंसर्ट होता है और उसी सेम एंड से डिलीट होता है और जो पॉइंटर उस डेटा को पॉइंट करता है दैट इज द टॉप एलिमेंट. The last item inserted into a stack is the first item to be taken out from the stack. जो आइटम सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक ऑफ बुक्स, तो लास्ट में ये बुक रखी गई है तो फर्स्ट बुक उठाते टाइम यही बुक बाहर आएगी. एज यू कैन सी एग्जांपल ऑफ इन द स्टैक ऑफ कॉइन, ये कॉइन जो ऊपर में रखा है वही कॉइन सबसे पहले बाहर में आएगा. So out of from the stack, in short it is also called as last in first out. Now how the stack is represented in memory? Now we can see the stack can be implemented with the help of array. Array जो होता है हमारा that is a collection of similar type of data. यहाँ पे हमने array define किया है, that is integer a of 10. That means it can be a stack of the size 10, मतलब उसमें 10 elements stored हो सकते हैं. After that, when we define the stack, its initial pointer, that is top pointer value is to the -1, because जब भी पहला एलिमेंट स्टैक में स्टोर्ड होगा या फिर अरे में स्टोर्ड होगा वो होगा एट द 0th पोजीशन. तो वी कैन सी स्टैक एज एन अरे. स्टैक एज एन अरे में देखिए यहाँ पे 12, 8, 21, 33, 18, 40 ये एलिमेंट स्टैक में रखे हुए हैं और जो हमारा टॉप पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 40 एलिमेंट. सो इसका अगर हम अरे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो जो हमारा 12 एलिमेंट है दैट इज एट द 0th पोजीशन, 8 जो एलिमेंट है दैट इज एट 1 पोजीशन, 21 जो एलिमेंट है दैट इज एट 2 पोजीशन एंड 33 एलिमेंट एट 3 पोजीशन, 18 एलिमेंट एट 4 पोजीशन एंड 10 एलिमेंट एट दी 5 पोजीशन. सो इस फिगर में भी देख सकते हैं आप कि 12, 8, 21, 33, 18, 40 एंड टॉप पॉइंटर पॉइंट्स टू दैट इज 40 वैल्यू. तो जब भी आप अरे डिफाइन करते हैं तो ये स्टैक किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो 0th इंडेक्स से लेके 9th इंडेक्स तक हमारा ये अरे क्रिएट हुआ. इसी को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ स्टैक व्हेन वी point the top pointer to the -1. So the element of the stack is represented by 12, 8, 21, 33, 18, 40 और इस तरीके से वो कंप्यूटर में मेमोरी ऑक्युपाई करेगा. Now the size is given 9, that 0 to 9, that means we can store 10 element, but here we added the 5 element, so remaining space will be vacant. The memory that will be occupied this element and by the stack elements and the remainings are the vacant. So in a computer a stack is represented with the help of array and with the help of linked list.
तो विद द हेल्प ऑफ अरे वी हैड सीन हम अरे डिफाइन करेंगे और टॉप पॉइंटर डिफाइन करेंगे जो इनिशियली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा -1। जब एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो वैल्यू टॉप पॉइंटर की इंक्रीज होती जाएगी। तो नाउ द बेसिक ऑपरेशन ऑन स्टैक। तो स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे ऑपरेशंस होते हैं लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। तो हम देखेंगे कि स्टैक के ऊपर हमको कौन से ऑपरेशन कर सकते हम। तो सबसे पहला है इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू स्टैक, दैट इज अ पुश। तो जब भी आप कोई एलिमेंट स्टोर करते हो स्टैक में, दैट इज कॉल्ड पुशिंग, स्टोरिंग एन एलिमेंट ऑन द स्टैक। नेक्स्ट ऑपरेशन इज द पॉप। पॉप मीन्स रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। अगर मुझे स्टैक में से कोई एलिमेंट रिट्रीव करना है, कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसको अगर मैं वहां से रिमूव करता हूँ तो दैट इज अ पॉप ऑपरेशन। So when we insert the element, that is a push operation, and when we delete the element, that is a pop operation. Now next operation is the pick. Pick is to get the top data element of the stack. अगर आपने कोई stack define किया है तो उस stack के top पे कौन सा element है वो अगर आपको retrieve करना है without removing it, मतलब उसे stack से delete करने के बजाय मुझे top के element को access करना है, तो that is a pick operation. Next, जब भी आप स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो मुझे पहले ये चेक करना होता है कि स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, तो वो चेक करने के लिए इज फुल ऑपरेशन है। और अगर मुझे कोई एलिमेंट स्टैक में से डिलीट करना है तो मुझे चेक करना होता है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इज एम्प्टी ऑपरेशन मुझे चेक करना है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो we'll see the push operation, किस तरीके से push operation होता है। When we are going to insert of any item in a stack is called a push operation. जब भी आप कोई एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करते हो तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इन स्टैक एनी आइटम इज इंसर्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। जब भी कोई एलिमेंट ऐड होता है वो टॉप पॉइंटर पे ऐड होता है, टॉप पोजीशन पे एलिमेंट ऐड होता है। When we insert any item in the stack, टॉप विल बी इंक्रीज बाय 1। अभी जैसे फिगर में देख रहे हो यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इनिशियली टॉप 3 को पॉइंट कर रहा है। जब भी पुश ऑपरेशन होता है तो टॉप गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1। नाउ वी कैन सी इन दिस फिगर इटसेल्फ कि जैसे इनिशियली स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू हमारी थी -1। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हुआ, इंसर्ट 11, टॉप गेट इंक्रीमेंटेड। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 22 इज एडेड हियर, नेक्स्ट 11, 22, 33 इज एडेड हियर। तो जैसे आप पुश ऑपरेशन करते हो स्टैक के ऊपर एलिमेंट इंसर्ट करते हो, दैट विल बी एडेड फ्रॉम 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। नेक्स्ट एलिमेंट इस लोकेशन पे ऐड होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पुश ऑपरेशन करेंगे तो दैट विल बी एडेड एलिमेंट हियर। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस ऑपरेशन, ये जो हम ऑपरेशन देख रहे हैं इससे हमको ये ध्यान में आता है कि जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाय 1। इनिशियली द वैल्यू ऑफ टॉप इज -1। फर्स्ट एलिमेंट आया, टॉप इंक्रीमेंट। सेकंड एलिमेंट जब भी आता है तो टॉप पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट करेगा वहां पे नेक्स्ट एलिमेंट ऐड होगा। So to perform the push operation, there is a requirement of the element, that is push is the operation name, stack name, कौन से स्टैक में डेटा इंसर्ट करना है, और डेटा आइटम कौन सा डेटा उसमें ऐड करना है। सो यहाँ पे देखिए हम अगर मुझे कोई डेटा पुश करना है, जैसे मुझे 30 डेटा पुश करना है तो पुश ऑपरेशन होगा। इनिशियली मेरा स्टैक में एलिमेंट थे 20 और 78, टॉप एलिमेंट हमारा था 78। तो यहाँ पे जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ टॉप इज इंक्रीमेंटेड। इनिशियली वैल्यू इज 20, then 78, it is already in the stack. Next element has to be pushed, that is 30, तो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो एलिमेंट ऐड होगा एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। नेक्स्ट इज द पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीशन ऑफ एनी आइटम इन द स्टैक इज कॉल्ड अ पॉप ऑपरेशन। अगर आप स्टैक में से कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। इन स्टैक एनी आइटम इज इंसर्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो डिलीट अगर मुझे करना है कोई एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक से डिलीट होगा वो। व्हेन वी डिलीट एन
delete any item in the stack, top will be decreased by 1. जब भी आप कोई एलिमेंट डिलीट करते हो तो वैल्यू ऑफ टॉप डिक्रीज होता है by 1. That is a pop operation. Now you can see in the figure the value initial value है स्टैक में 33, 22, 11. जैसे नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट हुआ वैल्यू हुई 22, 11 बची है. नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट हुआ वैल्यू 11 बची है. एलिमेंट सारे डिलीट हो गए, स्टैक एम्प्टी हो गया है. द वैल्यू ऑफ टॉप रिचेस टू -1. सो व्हेन वी डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, यहाँ पे आपको पॉप हमारा ऑपरेशन है. इनिशियल एलिमेंट है 20, 78, 30. जब भी आपको पॉप करना है डेटा तो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो हमारा 30 है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड स्टैक विल कंटेन द वैल्यू 20 एंड 78 और टॉप जो एलिमेंट है दैट विल बी पॉइंट टू 78. So from this video what we learn the basic of stack. Basic of stack मतलब stack क्या है? तो stack एक linear data structure है. It stores data in a sequence. जिस फॉर्म में डेटा आ रहा है दैट इज इन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट ये काम करता है. उसके बाद मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक. तो स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू वेज, आइदर अरे और लिंक लिस्ट. इस वीडियो में हमने बाय यूजिंग अरे स्टैक को रिप्रेजेंट किया है. जब भी आप स्टैक को रिप्रेजेंट करते हैं तो अरे के साथ एक टॉप पॉइंटर रिप्रेजेंट करना होता है. इनिशियली उसकी वैल्यू होती है -1. जैसे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाय 1 और जैसे एलिमेंट आप डिलीट करते हैं तो टॉप की वैल्यू डिक्रीज होती है बाय 1. उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं स्टैक के? तो बेसिक ऑपरेशन ऑन स्टैक हमने देखा था पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीप ऑपरेशन, is full operation, is empty operation. Push operation for inserting the element in a stack, pop operation for deleting the element from the stack, peep operation to retrieve the topmost element of the stack, and the is full operation is to check whether the stack is full or not, and is empty operation to check whether the stack empty or not. The POS map from this topic is we understand the basic knowledge of the stack, how the stack works. डिसिप्लिन नॉलेज में हमने देखा है कि स्टैक कैसे कंप्यूटर में यूज होता है. एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस बाय यूजिंग द पुश एंड पॉप ऑपरेशन वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. इंजीनियरिंग टूल्स लाइक वी हैव टू यूज द प्रोग्राम्स और वी हैव टू यूज C tools to execute the to write the code for the push and pop. उसके बाद इंडिविजुअल एंड टीम वर्क वी हैड डन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट of the stack individually. After that communications and lifelong learning. Thank you for watching the video. If you have any doubt or any queries on this topic or on this video, you are feel free to call me or you can email the whatever the queries you are having. Thank you.